Hello everyone, my name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department in BBD NIIT Lucknow. Let us proceed forward in this module of Power System 2 KEE with AKTU code KEE 601. This module is the introductory module of Power System 2 and we have already discussed some basics of sequence impedance and sequence network. Now let us continue with the same flow. Till now what we have discussed about sequence impedance and sequence network, let us quickly recap. We have done it for 3-phase loads and tried to represent that 3-phase load in 3 set of impedance network, which is positive sequence network, negative sequence network and zero sequence network. Same thing which we have realized it, we have done it for transmission line also. ठीक है, हमने दोनों केसेस में देखा है जब हम म्यूचुअल इम्पिडेंसेस कैलकुलेट कंसिडर कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं. ट्रांसमिशन लाइंस में वी वर नॉट कंसिडरिंग म्यूचुअल इम्पिडेंसेस एंड व्हाट वाज द रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन्ड. द रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन्ड फॉर द ट्रांसमिशन लाइन वाज कि पॉजिटिव सीक्वेंस हो चाहे नेगेटिव सीक्वेंस हो, अगर इम्पिडेंस की बात की जाए ट्रांसमिशन लाइन में तो सेम ही वैल्यू आ रही है सीक्वेंस के सिस्टम के इम्पिडेंस के इक्वल, फेज इम्पिडेंसेस के इक्वल. और जब हम जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस की बात करते हैं तो इट वाज the impedance of the circuit plus 3 times the impedance of the neutral. So, it was 3Zn plus Z of the impedance of the system, ठीक है, या of the line. ठीक है, तो transmission line और loads का तो हो गया. Let us now quickly jump on to generators and then transformers, which are also essential part of the power systems. Now, let's move on to generators. What do we have to say about generators? तो सीक्वेंस नेटवर्क में जनरेटर्स का भी सेम कहानी है. यहाँ भी हम क्या चाहते हैं कि हमें सिमिलरली जैसे ट्रांसमिशन लाइंस में और 3-फेज लोड में सेपरेटली 3 अलग अलग नेटवर्क्स मिल पा रहे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वैसे ही ट्रांसमिशन लाइंस में भी मिल पाए. हमारे इंटायर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक वजह ये भी है कि जब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पर आते हैं तो हम 3-फेज जनरेटर्स के रेफरेंस को ही लेते हैं. जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस की जब बात की जाती है तो वी से positive sequence is the representation of the rotation of rotating magnetic field of stator is in same direction as that of a rotor. तो वो positive sequence दिखाता है. Similarly negative में क्या है, it is opposite direction of rotation of the rotating magnetic field of rotation of stator field and rotor fields are of opposite direction. And similarly when we are talking about zero sequence, so we are only talking about the positioning of the magnetic field. So we represent symmetrical components with respect to physical significance of generators only. तो यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं. But before discussing, let us please remember some important terms related to the generator. What are those terms? First terms, transient values. So जब भी अगर हम ट्रांजिएंट के टाइम पर फॉल्टी कंडीशन को देखें तो जो ट्रांजिएंट फॉल्ट इम्पिडेंस इन जनरेटर विल ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. सिमिलरली जब हम पॉजिटिव सीक्वेंस वैल्यूज की बात करेंगे जनरेटर में तो वी विल हैव टू एनोटेट इट विथ 3 टर्म्स: ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ स्टेडी स्टेट कंडीशन. ठीक है, सेम गोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सीक्वेंस. Since it is the values is affected by the rotation of the rotor, we'll also have the difference of the value of negative sequence with subtransient reactance. Now you must be wondering why are we using this term transient and subtransient reactance. This we will discuss in the upcoming lecture in detail. As of now we can only remember these terms. We will be discussing in the upcoming lecture entirely in detail what is this term xd dash, xd double dash and xd, which is greater, which is used when. We will be coming up to that. For now let us first understand this typical value and try to deduce how a symmetrical network is being drawn. Once we have understood how it is drawn, then we will jump into कि हम इस नेटवर्क को यूटिलाइज करेंगे तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कब हमने xd लिया है, xd डैश क्यों लिखा है, xd डबल डैश क्यों लिखा है, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या होता है, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या होता है. पहले फंडामेंटल्स तो समझे. ठीक है, हाँ, जीरो सीक्वेंस की बात करें अब यहाँ पर तो जीरो सीक्वेंस को क्या बोल रहे हैं. जीरो सीक्वेंस में हमारा थर्ड जो टिपिकल वैल्यूज है वी से दैट इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एयर गैप ऑफ द मशीन.
दैट इज़ व्हाट जीरो सीक्वेंस वाज मेंट टू बी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, तो इससे ये हो रहा है कि जब हम जीरो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ जनरली, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन जब सॉल्व करते हैं लिखने का, तो हम हमेशा क्या करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस से ज़रूर डिफरेंस लेते हैं उसका। तो दिस आर द थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड। व्हाट, कि पॉजिटिव सीक्वेंस होगा तो हम हमेशा ये 3 टर्म्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, XD, XD डैश एंड XD डबल डैश, डायरेक्ट एक्सिस term, subtransient reactance and transient reactance. Subtransient is double dash and transient is dash, represented by XD dash, ठीक है। नेगेटिव में क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिपेंडेंट हो जा रहा है, तो नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस को लिखने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, X2, और डिफरेंस ले रहे हैं XD डबल डैश का, विच एवर द ग्रेटर वी आर सबट्रैक्टिंग इट, सो वी आर सेइंग इट टू बी द डिफरेंस। सिमिलरली जब जीरो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो लीकेज इंपेडेंस का कंसिडरेशन करते ही हैं हम लोग, until unless it is very small and can be neglected. So we are representing it again as a difference between zero sequence impedance and the leakage reactance. Now let's see what is this. Here we can see 3 diagrams. This 3 diagram is making us realize what is the generator model for zero sequence, positive sequence and negative sequence of the machine. For the first diagram, let us see here. तो यहाँ पर हमें क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि जब हम ज़ीरो सीक्वेंस की बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन करते समय जनरेटर में, तो ये एक पैसिव नेटवर्क है। यहाँ पर हम केवल क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो सीक्वेंस की इम्पिडेंस। द टर्मिनल वोल्टेज VT0 इज द वोल्टेज इन फॉर्म ऑफ ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ओनली, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस में भी क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस में भी वी ओनली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस एंड द टर्मिनल वोल्टेज। इट इज अगेन अ पैसिव नेटवर्क। तो जनरेटर का जनरेटिंग वोल्टेज कहाँ जाता है, तो जनरेटर का जो जनरेटिंग वोल्टेज है दैट इज इंटायरली कंसिडर्ड इन ओनली एंड ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, so that we have positive sequence network representation as the voltage of generating voltage of the generator connected in series with the positive sequence impedance of the generator. So this is the standard annotation which will be using in the entire unit and the preceding units also for representation of generator in zero, positive and negative sequence models respectively. Now how do we do it, how do we understand it? So what do we do? Simply यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक सिंपल स्टार कनेक्टेड जनरेटर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, सिंपली 3 फेज रिप्रेजेंटेशन लिया, किसी को भी फेज A, B और C लिख लेते हैं। तो मान लिया ये फेज A है, ये फेज B है और ये फेज C है। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जनरेटर में जनरेटर इज प्रोड्यूसिंग सम करंट, इट इज हैविंग E एंड EMF ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज या जनरेटिंग वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज एंड इम्पिडेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज। तो ZS क्या है, ZS इम्पिडेंस है A फेज का भी, B फेज का भी, C फेज का भी, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ इम्पिडेंसेस एट ZS। और तीनों ही क्या है, एक एक फेज वोल्टेज A, B, C के जो फेज वोल्टेजेस हैं वो रिप्रेजेंटेशन है। अब हम क्या करना चाहते हैं इससे, हम इससे यही डिसाइड कर रहे थे कि हमने कैसे वन मॉडल रिप्रेजेंटेशन ले लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू राइट दी इक्वेशंस ऑफ KVL फॉर एवरी सिंगल नेटवर्क विच वी कैन सी हियर। एक फेज A से इक्वेशन लिख सकते हैं, B से भी लिख सकते हैं, C से भी लिख सकते हैं, ठीक है। KVL की इक्वेशन लिख लेंगे, थ्रू द न्यूट्रल वी आर कंप्लीटिंग द पाथ, फॉर फेज B ऑल्सो थ्रू द न्यूट्रल वी आर कंप्लीटिंग द पाथ, फॉर फेज C ऑल्सो थ्रू द न्यूट्रल वी आर कंप्लीटिंग द पाथ, ठीक है। तो जब हमने तीनों फेजेस के 3 इक्वेशन लिख लिए, व्हाट नेक्स्ट, हम इसको सीक्वेंस कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे वैसे ही जैसे हम लोग अब तक करते चले आए हैं, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए भी और लोड के लिए भी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली राइट द इक्वेशन ऑफ KVL। कैसे, टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू जनरेटिंग वोल्टेज प्लस ZS इंटू EA प्लस ZS इंटू IA is equal to टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फेज A। अब फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, फेज कंपोनेंट्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट यानी A इंटू सिमेट्रिकल कंपोनेंट, ZS इंटू सिमेट्रिकल कंपोनेंट V टर्मिनल, और इसको
सॉल्व करके ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने ए को क्या किया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज जो है ए फेज पॉजिटिव सीक्वेंस में लिया हुआ है, वो कैसे आता है वो यहीं पर निकल के आ जाएगा। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैट्रिक्स फॉर्मेट में रख दिया जाए तो हाउ, लेट्स सी व्हाट वी हैव सेड कि हम लोगों ने एक्सप्रेशंस लिखे और तीनों को वोल्टेजेस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब कैसे किया हम लोगों ने ये काम, हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इंटू जेड के फॉर्म में, ठीक है, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, ठीक है। जब ई की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस, जेड आई की बात करेंगे तो उसको भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव में रखेंगे और जेड को डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी वी ए वी बी वी सी को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ए इंटू वी ए वी बी वी सी लिखा जाएगा। ई को भी हम रिप्रेजेंटेशन किस में करेंगे, ए बी सी के फॉर्मेट में। आई के लिए भी क्या लिख देंगे, ए इंटू आई ए आई बी आई सी, और जेड को तो निकालना ही है हमें, ठीक है। रह गई बात ए की, तो ए ई वाले टर्म की जो जनरेटिंग है, तो हम लोगों ने अभी शुरू में ही क्या देखा था जब हम मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा इस डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि पॉजिटिव सीक्वेंस में ही हमने क्या किया हुआ, जनरेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, नेगेटिव और जीरो में नहीं किया है। तो अगर हम सीक्वेंस कंपोनेंट के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जीरो ई ए एंड जीरो, ठीक है। जब वोल्टेजेस का रिप्रेजेंटेशन टर्मिनल वोल्टेज का कर रहे हैं तो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करंट का कर रहे हैं तो IA1 IA2 IA0 ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें और z निकाल कर देखें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो ये मिलती है। ये मैट्रिक्स हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जीरो सीक्वेंस में नो इम्पिडेंस वी आर कंसिडरिंग, पॉजिटिव सीक्वेंस में वी आर कंसिडरिंग ZD द डायरेक्ट एक्सेस इम्पिडेंस ड्यू टू डायरेक्ट एक्सेस, और नेगेटिव सीक्वेंस में भी सेम वैल्यू आई है जो पॉजिटिव सीक्वेंस में आई। जनरली हमें यही ऑब्जर्व हो रहा है कि पॉजिटिव सीक्वेंस की जो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं वो नेगेटिव सीक्वेंस में भी जनरली सेम आई हैं। अब तक तो तीनों एलिमेंट्स में हमने कर चेक किया। वन वेरी एसेंशियल थिंग इज, जब हम जनरेटिंग मॉडल बनाते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो है कि जनरेटर की ग्राउंडिंग कैसी थी। वी विल ओनली कनेक्ट द टर्मिनल वोल्टेजेस ओनली इफ इट इज ग्राउंडेड, इफ इट इज नॉट ग्राउंडेड जीरो सीक्वेंस इज नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड। तो यहाँ पर आप इस फर्स्ट डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ वी आर नॉट हैविंग एनी कनेक्शन ड्यू टू नॉन प्रेजेंस ऑफ ग्राउंडिंग। यही तो रीजन था कि जीरो आया है जब हमने कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन किया। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू सॉलिडली ग्राउंडिंग ऑफ अ स्टार कनेक्टेड जनरेटर। एवरीथिंग वी हैव टू डू द सेम प्रोसीजर, बट बस यहाँ क्या है, एट द एंड ऑफ द टर्मिनल वोल्टेजेस में ओपन सर्किट नहीं हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज जीरो नहीं हो रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेजेस का एक्सप्रेशन हम वैसे ही लिखेंगे, फॉर्मूला अब भी वैसा ही यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू जेड। अब यहाँ फिर उसको सीक्वेंस कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, ई को फिर सिर्फ एक की जगह एनोटेट करेंगे, वो है पॉजिटिव सीक्वेंस में, वोल्टेजेस को उसके रेस्पेक्टिव फेजिंग फेज सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, करंट को भी किया जाएगा, और क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि Z की वैल्यू क्या निकल कर आती है। सी हियर हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। हमें पता है कि हमने EA EB EC जब हम ले रहे हैं, और अगर हमें जब इसको सीक्वेंस कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है तो ABC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ जो सीक्वेंस कंपोनेंट में सिर्फ फेज पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ ही आएगा। तो EA की वैल्यू पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ आई, और मतलब बाकी सीक्वेंस कंपोनेंट में पॉजिटिव सीक्वेंस में भी E की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव में भी जीरो है, और जीरो सीक्वेंस में तो जीरो है ही है, ठीक है। और X0 X1 X2 जब हम इम्पिडेंसेस निकालेंगे, यहाँ सबको XD माना हुआ है, ग्राउंडेड थी, तो यहाँ पर और पिछले डायग्राम में आप क्या चेंज देख रहे हैं, केवल ड्यू टू द ग्राउंडिंग दिस कनेक्शन इज नाउ नॉट जीरो, and for the impedance of positive, negative and zero we will have the same value. What will be that value? This value only, the actual direct axis impedance of the machine. This is the result which is also written here.
we are getting the same values. How can we calculate? Same formula, V is equal to E minus I into Z. Now reconvert that into phase sequences diagram. Now what if we have a neutral, not a neutral grounding but grounding with some impedance? प्रोसीजर तो सेम है, केवल न्यूट्रल के साथ आप देख रहे होगे कि बिहेवियर शो हो रहा है, चेंज हो रहा है. क्यों हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस, नॉन प्रेजेंस कुछ था ही नहीं, ग्राउंडेड ही नहीं था तो जीरो हो गया था. ग्राउंडेड हुआ तो सिर्फ क्या वैल्यू आ रही थी? सेम फेज की ही सीक्वेंस की वैल्यू आ जा रही थी जो फेज सीक्वेंस में थी इम्पिडेंस की. जब यहाँ पर ग्राउंड कर देंगे तो क्या हो जा रहा है? 3 टाइम्स हो जा रहा है. कैलकुलेट कैसे किया है? वही फॉर्मूला अगेन, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू जेड. ओनली हम क्या कर रहे हैं? सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं. और हमें यहाँ कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन मिला कि पॉजिटिव और नेगेटिव फेज में तो जब हम इम्पिडेंसेस की वैल्यू सेम होती है और वही है जो फेज इम्पिडेंसेस का एक्सप्रेशन है फॉर द जनरेटर. लेकिन जब हम नेगेटिव जीरो सीक्वेंस मॉडल की बात करते हैं जनरेटर में, तो जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस इज रिप्रेजेंटेड एज ZS प्लस 3 टाइम्स ZN, वेयर ZN इज द इम्पिडेंस ऑफ द न्यूट्रल जिसके थ्रू ग्राउंड हुआ है. ये Z0 का वैल्यू है जनरेटर के लिए, Z1 का वैल्यू जनरेटर के लिए सेम ही है जो जनरेटिंग इम्पिडेंसेस फेज का है, और नेगेटिव के लिए भी सेम ही है. So this is the representation of for a generating model in a star connected with impedance grounding. Now let also understand about delta connection. डेल्टा कनेक्शन में भी एक्सप्रेशन अगेन फिर से वही सेम हो रहा है. डेल्टा कनेक्शन में हम लोगों ने भी यहाँ भी वही एक्सप्रेशन यूज़ किया है कि V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू जेड. टर्मिनल वोल्टेज VA, VB, VC, I is also represented as IA, IB, IC. E की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? पहले EA, EB, EC. जब हम फेज कंपोनेंट, जब नॉर्मली हम लोग क्या लिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में? नॉर्मली हम लोग लिख रहे हैं EA, EB, EC माइनस Z इंटू IA, IB, IC इज इक्वल टू VA, VB, VC. ठीक है, Z का एक्सप्रेशन हम लोग रख लेंगे अभी कि इस जगह पे क्या कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब जब हम सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस में इसका एक्सप्रेशन लेते हैं केवल, और नेगेटिव और जीरो में नहीं ले रहे हैं. तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये केवल हो जाएगा 0 इंटू जनरेटिंग वोल्टेज EG और 0. इसके लिए क्या ले लेंगे? A टाइम्स द I मैट्रिक्स, A टाइम्स द V मैट्रिक्स. यहाँ पर Z भी है. Now we can simplify and get the values of Z again. What we can see here is we are again getting the similar values of star connected, but when we are drawing it we have to be a bit careful because neutral nahi hai, but the two phases are interconnected together in delta. इसलिए जब हम representation करेंगे तो जीरो सीक्वेंस का जनरेटर में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से. ठीक है. Since it is not having interconnection with the terminal voltage, hence we are writing it 0 here. Else or otherwise it would have been mentioned. यहाँ पर क्या हुआ है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्यों चेंजेस आए हैं? बिकॉज ऑफ द डेल्टा कनेक्शन. ठीक है. सिमिलरली फेज B और पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस में देखेंगे तो इट इज अगेन हैविंग द सेम वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सिस्टम इम्पिडेंस ओनली. ठीक है. Now quickly let us jump into the condition of transformer also. It is very hectic terminology but very useful in terms of analysis when we are doing separately, because हम decouple कर पा रहे हैं ना positive, negative और zero को, तो हमारी analysis बहुत आराम से हो पाती है. So let's quickly jump into what transformers is. But before we move on to what we are going to do in the transformer, let's be aware of some certain terms. Term number 1 is the leakage impedance. First things first, leakage impedance is a series impedance. Second thing, किसको indicate करता है ये? The losses को, transformers में losses को. कौन से losses? Due to the core and due to the magnetization current. ठीक है. It is a very small amount but it does exist. ठीक है. Second thing is, ट्रांसफॉर्मर का जब हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं
तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी में जब भी हम रेफर टू प्राइमरी भी करें या रेफर टू सेकेंडरी भी करें, तो हमारे पास इक्वलेंट मॉडल में इम्पिडेंस जो मेंशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीकेज इम्पिडेंस. सो दैट इज अ सीरीज लीकेज इम्पिडेंस. Now when we are jumping into three-phase transformers, the series leakage impedance is same for all the three phases, all the three-phase units. ठीक है. Series leakage impedance जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट में, तो यहाँ हम लोगों को मिलता है सेम सॉल्यूशन अगेन कि पॉजिटिव और नेगेटिव में लीकेज इम्पिडेंसेस आर सेम. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन. How do we represent? So zero sequence network of a transformer या डिपेंड करता है इंटरकनेक्शन. जब हम जीरो सीक्वेंस का बनाने की कोशिश, पॉजिटिव और नेगेटिव का तो हमने कह दिया सेम वैल्यू है, एज सिंपल एज दैट. जीरो सीक्वेंस की बात करते हैं तो जीरो सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है दो बातों पर. पहला, इंटरकनेक्शन क्या है, दूसरा ग्राउंडिंग क्या है, इंपेडेंस क्या है, ग्राउंडिंग क्या है. तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंडिंग we can represent it in terms of various types of zero sequence network. How do we do that? We can assume that we are having 4 switches. ठीक है, जिसमें से 2 switch are connected in series and 2 switches are connected in shunt. ऐसा कुछ समझ लेते हैं, कुछ ऐसा. एक सीरीज में स्विच है, एक शंट में स्विच है, फिर एक सीरीज में स्विच है, फिर एक शंट में स्विच है. ठीक है. तो ट्रांसफॉर्मर में इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं. अब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में जिस तरह का ग्राउंडिंग होता है और जिस तरह का कनेक्शन होता है, यानी स्टार या डेल्टा, उसके अकॉर्डिंगली हम सीरीज या शंट स्विच को क्लोज करते हैं. ठीक है. पहली चीज आते हैं, जब हमारे पास दोनों साइड ग्राउंडेड हो और दोनों साइड जो कनेक्शन है वो स्टार हो, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है. मान लेते हैं ये पहला साइड प्राइमरी का साइड है ट्रांसफार्मर के, ये दूसरा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है. ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड ग्राउंडेड है और स्टार कनेक्टेड है, यानी जैसा रिप्रेजेंटेशन आपने वन लाइन डायग्राम में देखा होगा, स्टार विथ ग्राउंडेड. सिमिलरली ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है कनेक्टेड विद दी ग्राउंडेड. अगर हम इसको 4 सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करें, 4 स्विचेस के हिसाब से, तो क्या कर रहे हैं, सीरीज वाले स्विचेस को शॉर्ट्स क्लोज कर रहे हैं और शंट वाले स्विचेस को ओपन रख रहे हैं. अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो देखो क्या हुआ है, फर्स्ट वाला ही तो एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर हम दोनों स्टार तो रखे हैं लेकिन ग्राउंड नहीं किए हैं, तो जो सेकेंड स्विच है ये वाला, दिस विल बी ओपन, ग्राउंडिंग पे ही क्लोज हो रहा है, दिस विल बी ओपन, अदरवाइज this is closed. So it is open circuit represented here और शंट वाले switches भी open ही हैं, तो representation change हो गया. Similarly दोनों साइड स्टार है और दोनों साइड में से दोनों ही साइड ग्राउंडेड नहीं है. पिछले में तो एक ग्राउंडेड था, यहाँ दोनों ही ग्राउंडेड नहीं है. दोनों ही ग्राउंडेड नहीं है तो ना पहला वाला स्विच क्लोज होगा, ना दूसरा वाला स्विच क्लोज होगा, ना ही शंट वाले होंगे. तो सिंपली रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, ऐसा. अब बात करते हैं, एक साइड स्टार है, एक साइड डेल्टा. जिस साइड स्टार है उस साइड सीरीज वाला स्विच क्लोज होगा, जिस साइड शंट है, जिस साइड डेल्टा कनेक्टेड है उस साइड शंट वाला स्विच क्लोज होगा. सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द जीरो सीक्वेंस फॉर्मेट. प्राइमरी साइड स्टार है, सेकेंडरी साइड डेल्टा है. तो प्राइमरी साइड स्टार में, और ये क्या है रिप्रेजेंटेशन, फिर से सीरीज स्विच क्लोज हुआ है, शंट स्विच क्लोज नहीं हुआ है. दोनों साइड ही डेल्टा है तो सिर्फ और सिर्फ शंट स्विच क्लोज होगा, सीरीज वाला स्विच ओपन रहेगा. तो यहाँ देखिए आप, सीरीज वाला स्विच ओपन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो जो शंट के स्विचेस रिप्रेजेंट किए थे वही क्लोज हुए हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरकनेक्शन वी कैन अज्यूम इट इन टर्म्स ऑफ 4 स्विचेस, और उन 4 स्विचेस के करस्पॉन्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, जीरो सीक्वेंस को ट्रांसफार्मर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर ये क्लियर डायग्राम एक आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे. तो यहाँ देखो सारे सेट ऑफ कंडीशंस इकट्ठा मेंशन किए गए हैं. स्टार है, ग्राउंडेड है, दूसरी साइड सिर्फ स्टार है. कैसा आया इंपिडेंस, एक साइड तो सीरीज का स्विच क्लोज है, एक साइड ओपन है. दोनों साइड स्टार विथ ग्राउंडेड है, सीरीज कंटिन्यूअस सिस्टम है, शंट वाले स्विचेस ओपन है. एक साइड स्टार विथ ग्राउंडेड है, दूसरी साइड डेल्टा है,
तो स्टार विथ ग्राउंडेड की वजह से सीरीज वाला कंटिन्यूएशन में इम्पिडेंस है और शंट वाली स्विच क्लोज हुई है। अब प्राइमरी साइड स्टार है बट अनकनेक्टेड है और डेल्टा है, तो ये ओपन सिस्टम गया है और यहाँ पे तो कनेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, तो इधर से शंट वाली ओपन हो गई है। अब दोनों साइड डेल्टा है तो दोनों सीरीज वाली स्विच ओपन है, तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, दोनों शंट वाली स्विच क्लोज है, तो शंट में इम्पिडेंसेस कनेक्टेड है। तो ट्रांसफार्मर के सीक्वेंस डायग्राम्स में जब हम जीरो सीक्वेंस बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ग्राउंडिंग कैसी है और इंटरकनेक्शन कैसा है। इन दोनों के ही अकॉर्डिंगली हम लोग डिड्यूस कर पाते हैं कि हमें क्या बनाया गया है, एंड देन ओनली वी कैन रिप्रेजेंट इट एज द ट्रांसफार्मर्स equivalent impedance diagrams. Here we are ending with the expressions of how we can convert it into impedance diagram. What is the significance and how do we utilize it? We will discuss this in the upcoming lectures. As of this lecture, thank you very much.